There's a very popular saying that tough times create hard men. Hard men ना ये मेहनत करते हैं and they create good times, and good times create weak men because they get comfortable. And we are in this third cycle right now where men are becoming weaker and weaker, testosterone levels are dropping, we're getting lazy, comfortable, and times are going to get tough. You see what's going on in the world. There is so much of unrest. Artificial intelligence taking over. People are getting depressed, anxious, uncertain about the future. They don't want to do the hard things. The moment things get hard, they hide behind their insecurities. They hide behind excuses like depression, mental health. People are finding excuses. एंड ये आज एक सबसे बड़ा पेंडेमिक बनता जा रहा है. पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर लोनली. They're not able to invest themselves into relationships, constantly comparing their lives on Instagram with somebody who has put in 10, 20, 30 years of effort versus they are putting in zero effort. They would look at a guy with six packs and call him lucky. They would look at a guy with a hot girlfriend and call him lucky. They would look at a guy who's a billionaire and call him lucky. They don't see the hard work that people are putting in. And this is becoming, one of the reasons why men are becoming weak in today's times. In 2026, we are lacking an operating system for our life. I'll give you an example of my Dadaji who recently passed away. He was 99 years. He did not have any body pain. He did not have any issues in walking. He used to just hold a stick and walk stairs, go up and down, take his own shower, make his own shave, everything. That man lived 99 years and a healthy life, okay? My father, he is now almost 61, right? Second generation. Me, I'm 38, third generation. Now look at the difference. When my grandfather had gotten, when he was growing up, तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. तब the only job that men had to do was you would have to either work in the farm or in the factories. आपको सिर्फ output निकालना है. You just had to make sure that there is food on the table. We were fighting for survival and basics of security, right? खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, सर के ऊपर छत नहीं थी, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, बेसिक फाइनेंशियल चीज़ें नहीं थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था. Then my father's generation. So this generation worked really hard and they got my father's generation to a point जहाँ पे jobs appear होने लगी. हम थोड़ी stability लेकर आने लगे अपने life के अंदर. And धीरे धीरे the more that we started moving forward to us in our generation today, आज हमारे पास opportunities की कमी नहीं है. आज हमारे पास security है, हमारे पास खाना है, हमारे पास सर पे छत है. We've got clothes to wear. We've got options. But the problem that we have in today's generation is that we are so distracted with our mobile phones, with constant things that are going on and giving us notifications, instant gratification. So this is becoming one of the biggest problems in today's generation. And our insecurities are just getting amplified every day. और हम उन इनसिक्योरिटीज़ को जैसे ही हमें कोई कॉमन थ्रेड मिल जाता है ना, जो रीअश्योर करता है हमको उस फैक्ट को, कोई भी कल्ट हो सकती है, कोई भी फॉलोइंग हो सकती है, कोई भी लोगों की सोच हो सकती है, तो हम इमीडिएटली उसके साथ जुड़ जाते हैं कि हाँ यार, ही इज राइट, women are the problem for this, or this is the problem, or the prime minister is the problem, or the country is the problem. We don't want to work on our own self. हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है. हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, हाई शुगर, एरिएटेड ड्रिंक्स. इट्स जस्ट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. ठीक है. अर्लियर इट यूज टू बी फार्म टू टेबल. हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर लेजी. वी वेक अप एट 9 AM आराम से. सबसे पहली चीज़ हम करते हैं अपना फ़ोन उठा लेते हैं, राइट. देन every day we're just catching up to the world. We literally don't know what our next thing is going to be. क्या करना है हमें आज. हमारे दिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हमारी लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है. एंड दिस इज वॉट इज लीडिंग अस टू अस बिकमिंग वेरी लॉस्ट. तीसरी चीज़, पहले क्या होता था, दादाजी एंड माई फादर ऑल्सो दे यूज्ड टू वॉक. दिन में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर खेतों में काम कर रहे हैं, वॉक हो गया. फैक्ट्री पे आपका आना जाना, स्कूल का आना जाना, कॉलेज का आना जाना, सब पैदल होता था. दे यूज्ड टू राइड बाइसिकल्स. जब बाइसिकल्स आई तो बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटेंसिव लेबर होता था. आज नहीं है. आई रिसेंटली वेंट टू माई विलेज, व्हेन माई दादाजी ऑल्सो पास्ड अवे. वी सॉ कि वहाँ पे पहले तो हम लोगों की एक पूरी हवेली होती थी जिसमें 8-10 फैमिलीज साथ में रहती थी, राइट. आज सब न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं और सबने अपने 2-2, 3-3 मंजिल के घर बना लिए हैं. पक्की रोड्स हो गए हैं गाँव के अंदर.
पहले क्या होता था, विमेन यूज टू गो एंड फेच वाटर, 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता था, सर के ऊपर सामान लेके आते थे, वेटेड वॉक हो जाती थी एक तरह से, आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड थे। आज लोग अपने घरों के अंदर टीवी लगा के नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर रहे हैं, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। देयर यूज्ड टू बी लाइक बफलोज, गाय भैंसों का काम होता था, वो भी खत्म हो चुका है, वो भी नहीं कर रहे अब। उसके लिए भी रेंटेड लेबर आ गई है बिहार से एंड ऑल दीज प्लेसेस, देयर इज लॉट लेबर कमिंग इन टू पंजाब टू हरियाणा, तो अब लोग उसमें भी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर के ना, अब मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपकी मूवमेंट बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, शुगर बहुत कॉमन हो गई। पहले सुनने में नहीं आता था। माई डैड, ही वाज सरप्राइज्ड कि ये सब चीज़ें चल रही हैं गांव के अंदर, एंड वी नेवर सॉ दिस इन आवर लाइव्स एवर। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट ऑफ the amount of labor that you had to do versus the amount of effort that you have to put in today. आज आपका फिजिकल लेबर बहुत ड्रॉप हो चुका है versus what it was, पर आपने अपने खाना अडेप्ट नहीं करा। आज वही खाना खा रहे हो, घी, रोटियां 3-3, 4-4, पराठे, दूध, घी, लस्सी, ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी डाइट के अंदर। आप पहले इनको डाइजेस्ट कर लेते थे, आपकी बॉडी को चाहिए थी, आज नहीं चाहिए। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, पहले आप 10-20 किलोमीटर वॉक करते थे, साइकिल चलाते थे, सामान उठा के वेटेड वॉक्स करते थे, आज नहीं कर रहे हो आप। सो योर बॉडी हैज़ टू अडेप्ट, योर meals have to adapt, your exercise schedule has to adapt। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, and men are not doing the hard things, and this is actually becoming one of the biggest problems of our current comfortable life। आप देखो, आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, हर चीज़ के लिए एक ऐप आ गई है। आपको खाना ऑर्डर करना है, 2 मिनट पहले आपने सोचा अरे यार भूख लगी है, छोले भटूरे ऑर्डर कर लेते हैं, आपने ऑर्डर कर लिया, आपने 1000-2000 कैलोरीज ऐसे ही खा ली। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज खाने की। ऑन एन एवरेज पीपल आर ईटिंग मोर देन 3000 कैलोरीज। सो व्हाट्स हैपनिंग? आपका डिसिप्लिन टूटता जा रहा है। 24 घंटे आपके हाथ में एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। यू आर लुकिंग फॉर चीप डोपामीन हिट्स फ्रॉम रील्स। आपको पता नहीं नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है, तो आप एक्साइटेड रहते हो, माय गॉड लेट मी वॉच मोर। यूट्यूब वीडियो शुरू करते हो आप, 10 वीडियोज देख लेते हो आप। यू आर जस्ट गोइंग डीप डाउन दिस रैबिट होल ऑफ वन मोर वर्सेज द पावर ऑफ वन मोर कुड बी वन मोर रेप in your exercise, one more kilometer for your jog, one more egg for your protein rich diet। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, but we are getting away from this। इसकी वजह से क्या हो रहा है? People are getting lethargic, people are getting fat, people are getting slow, people are losing their testosterone levels, they've been dropping consistently every year। 1% testosterone levels are dropping in the current generation, and this is becoming one of the biggest problems। तो चैलेंज क्या हो रहा है? आज लोगों के पास ग्रोथ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं है। सो दिस इज बेसिकली देन टर्निंग इनटू फ्रस्ट्रेशन, और जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्शंस पे आते हो, आप स्क्रॉल करते हो, आप पॉर्न देखते हो, आप एडिक्शंस ईजी हो जाती हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब बहुत आसान हो रहा है। मैंने भी जब अपनी जॉब की शुरुआत करी थी ना, आई वाज इन अ कंफर्टेबल जॉब एंड 10 साल में अच्छी सैलरी हो गई थी। अगर कोविड नहीं आया तो मैं भी चेंज नहीं करता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं खुद भी मैंने बहुत एफर्ट डाला, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट बॉस दिस इज नॉट द वे टू लिव। So I created a routine for myself. I got an operating system in my life. I built my shred, and now I'm sharing it with everybody else so that you can also build it, right? Uncertainty की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ा, मेरे पास कोई सेफ्टी नेट ठीक है था, मेरे पेरेंट्स का था, माई वाइफ स्टार्टेड वर्किंग, बट वी टुक अ डिसीजन, एंड उस टाइम पे एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था दैट रेंटल इनकम हैड गॉन डाउन, विच वॉज आवर सर्वाइविंग ग्रेस, तो वो खत्म हो गया था। पारुल की जॉब नहीं थी, मेरी जॉब के अंदर सैलरी कट चुकी थी। सो देयर वर अ फ्यू मंथ्स दैट आई वाज वेरी अनसर्टन, डिप्रेस्ड, एंशियस, पुट ऑन 20 kgs, बट आई टुक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। व्हेन माई बैक वाज अगेंस्ट द वॉल, व्हेन द टाइम्स गॉट टफ, आई स्टूड अप, आई सेड दैट दिस इज नॉट द वे वी गोना डू इट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लॉन्च फॉर माई फर्स्ट स्टार्टअप एनवायरमेंटली। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन शुरू करी, फिर कोचिंग बिजनेस शुरू करा। सो इट्स बीन वन स्टेप एट अ टाइम, एंड आई नेवर स्टॉप्ड, आई डिडंट लुक बैक। आई एम अ 10-year, 20-year, I'm on a 20-year plan, so I'm going to keep doing it. So this is how I chose difficult things to start. First thing in the morning is that I get up at 5. It's a difficult thing, not many people can get up in the morning at 5. Second thing, I go to the gym, I do my meditation, I do my progressive overload in the gym. So I'm doing हार्ड थिंग्स इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग, मैं कंफर्ट को एस्केप नहीं कर रहा कि सुबह 9 बजे तक आराम से एसी चला के क्विल्ट में सो रहे हैं, सो सकता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा स्ट्रेस नहीं है आज लाइफ के अंदर, बट व्हाई डू आई डू इट? बिकॉज आई एम बिल्डिंग समथिंग, आई एम टेकिंग रिस्क, आई एम शेयरिंग माई लर्निंग्स, आई एम बिल्डिंग माई स्किल्स, आई एम बिल्डिंग माई ओन लर्निंग्स, आई एम ट्राइंग टू गेट 1% बेटर एवरी डे दैट आई कैन। तो ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस आपको करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू हैंडल रिजेक्शंस। इट्स ओके, आप 100 चीज़ों के ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको 2 से 5% का सक्सेस रेट मिलता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए आप चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू गेट दैट हॉट गर्ल इन योर लाइफ। बॉस, यू हैव टू फेस रिजेक्शंस, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट एस्केप इट। तो धीरे धीरे ना, यू नीड टू एम्ब्रेस हार्ड थिंग्स। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इसी से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आप जब बोलते हो कि मैं करूंगा और आप वो करते हो, दैट्स व्हेन योर सेल्फ एस्टीम ग्रोज, दैट या दिस गाय सेज दिस एंड ही डज इट,
आपके सबकॉन्शियस को पता चलता है, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होती है, डिसिप्लिन ना नेचुरली आने लगता है आपकी लाइफ के अंदर. आफ्टर 90 days इट बिकम्स अ लाइफ स्टाइल, एंड वंस इट्स अ लाइफ स्टाइल देर इज नो गोइंग बैक बॉस. सो व्हेन यू आर रेडी टू डू द हार्ड थिंग्स, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. सुबह ही आपने अपना माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, उसके बाद तो सब डाउन हिल है, सब नीचे आता है, उसके बाद कोई स्ट्रेस लेवल आपका स्पाइक नहीं होता, कुछ नहीं होता बॉस. तो धीरे धीरे शुरू करो. वेकअप अर्ली, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, 1 hour अर्ली एवरी डे. धीरे धीरे उसको 5 बजे तक लेके जाओ. वर्कआउट करो शुरू स्टार्टिंग ऑफ द डे, मॉर्निंग के अंदर, शाम को नहीं, बिकॉज आपका कॉर्टिसोल शाम को स्पाइक करता है, आपका मेलेटोनिन कम होता है, नींद पुश होती है. सो डोंट डू दैट. साइंटिफिकली इट्स प्रूवन टू डू योर वर्कआउट इन द मॉर्निंग. ईट क्लीन फूड 6 days इन अ वीक. एक चीट मील रख लो हफ्ते में, नो प्रॉब्लम्स. बट बाकी चीज़ें, शुगर आउट, डीप फ्राइड फूड आउट, जंक फूड आउट, एरिएटेड ड्रिंक्स आउट. कल मैं अपना ये शुगर मॉनिटर लगाया यहाँ पे हाथ के ऊपर ना. सो इट्स फ्रॉम अल्ट्रा ह्यूमन, द ब्रांड हैज सेंट दिस फॉर मी टू ट्राई इट. सो आई वॉज यूजिंग इट एंड यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक कि मैंने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न्स खाए थे, मेरा शुगर लेवल ना 189 पे स्पाइक हो गया था. जस्ट इमेजिन. एवरेज रेंज जो मैं नॉर्मल मील भी खाता हूँ ना अपनी, वो भी 100 से ऊपर नहीं जाता. सो आई एम मॉनिटरिंग दिस डेटा एंड इट इज शॉकिंग टू मी. सो वी डोंट रियलाइज दिस. नेक्स्ट हार्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज फिनिश वट यू स्टार्ट. आपने जो बोला है उसको खत्म करो. एंड फाइनली सिट इन साइलेंस, नो फोन फॉर 1 hour बिफोर यू स्लीप एंड 1 hour आफ्टर यू वेक अप. डू दिस. जस्ट पिक वन हार्ड थिंग, build it for 90 days, then add on the next hard thing. तो आपकी धीरे धीरे ना your identity will start to shift. Stop asking how life can be easy. ये पूछना शुरू करो कि how can I become stronger. तभी जाके आपकी लाइफ के अंदर वो क्लैरिटी आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ पे सुनना है तो बताना नीचे कमेंट्स में आके मेरे को. आई विल राइट इट देयर. सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. एंड याद रखो यार, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर गेम.